नमस्कार। विमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम जियो तो जियो ऐसे की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है दिल से। और इनका जो अनुभव है रडार्स, मिसाइल्स, कम्युनिकेशन, रियल टाइम सिस्टम्स, बहुत सी ऐसी चीज़ों के साथ, और इसके साथ ही ये म्यूज़िक के साथ भी जुड़े हैं। कॉर्पोरेट जीवन में भी बहुत सफलता हासिल की है और बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं। जिंदगी के 7 दशक पूरे कर चुके हैं और अभी भी जज्बा है बहुत कुछ करने का। इन्होंने अपनी जिंदगी के सफर के साथ एक टाइटल जोड़ा है, हीरो टू जीरो टू हीरो। तो क्या कारण थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा टाइटल दिया और कैसा रहा इनका सफर, इनका संघर्ष, इनकी सफलता और इनके गुण जो इनको औरों से अलग बनाते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। तो आइए। And all the others who are now online, let me thank you one and all for giving me an opportunity to present myself, not like a celebrity, but still, if my life can give some hints to be followed by others, it will be worth today's talk. One more thing, whatever I speak from now on is not meant to be spoken in a TED talk. It comes from my heart directly. These are my innermost feelings and that need just to be communicated to friends and well-wishers. So, first of all, let me explain to you what I believe are the characteristics of a person. I start with trust. One should be trustworthy, which means he should have good character and he should be competent. And character is again divided into two parts, intent and integrity. And competence is divided into capability and results. For example, capability of competence, it comes skills, knowledge, experience, and results, they come by reputation, credibility, and performance. And the character, its intent is shown by caring, transparency, openness, and integrity is shown by honesty, fairness, and authenticity. ब्यूटीफुल सर, वेरी नाइसली Very सेड। nicely. तो अब मैं आपसे शुरू कि कॉलेज की लाइफ मेरी कैसी रही, उसके बाद जी आगे की सर। बातें करेंगे। हंसराज कॉलेज में I didn't have to run around for admissions. I never went to the college to seek admissions. On the first day, my father took me there in a DTC bus to make known to me the location of the college. Those days, Hansraj College, like other colleges and the campus, was more of a forest than a crowded place of today. And the principal, Shanti Narayan, made a remark to my father, let us at least see the boy once before sending him to college. So compare it to today's environment in colleges. Then again, I talk about Punjab Engineering College. Here also, I did not apply for admission. There was an information about an interview. I just went and casually for the interview. I was selected and I got admission in engineering college. I mean, आजकल के जमाने में ऐसा तो हो नहीं सकता। और कॉलेज का जो लाइफ था उसमें हमारी फीस होती थी 90 रुपए पर मंथ, 90 रुपीज इंक्लूडेड लिविंग इन ए वेरी पॉश हॉस्टल लाइफ। उसमें भी 10 रुपए बच जाते थे। हालांकि हमें गवर्नमेंट के वो जो स्टेशनरी लेनी होती थी वो काफी एक्सपेंसिव आती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, ड्राइंग बोर्ड्स वगैरह, लेकिन फिर भी 10 रुपए बच जाते थे हमारे। अगर मैं कैरियर की बात करूं आईएएफ की, तो मैं आईएएफ में जब सिलेक्ट हुआ, आई वॉज इन इंजीनियरिंग कॉलेज even while I was studying, and I received the basic salary of a pilot officer every month in the last year of my college. And those days, the defense officer salary was more than the basic salary of an IAS officer. It was rupees 400 per month. When I joined the training course at AFTC Jalahari, Bangalore, and later for all the additional courses conducted at Bangalore or other places like
Coimbatore, Air Headquarters, Vayu Bhavan, etc., many people used to make a remark. The top position holder has already arrived. Let us fight for the second position. And I believe this position was inborn in me, because most of the success of mine was due to my handwriting. And in Air Force, handwriting meant a lot, which is now lost, of course, because the use of computers. But there, my question answer books were preserved as a sample to show to the others how precisely an answer should be given without beating about the bush and in a good handwriting. So, why Mike Rana and not Manmohan Kumar Rana is Yes, another sir. question which I ये will. बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स ने नाम रखा था मनमोहन कुमार राणा, और उसके बाद ये माइक राणा कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है? और अब ये ऑफिशियली है, आपके सारे सर्टिफिकेट्स तो मनमोहन कुमार राणा के साथ हैं, और अब ऑफिशियली आपका नाम माइक राणा है। तो ये आप सर बताएं, एक बार अनम्यूट कर लें खुद को। मैं एक दूसरा बंदा बन गया हूं। जब हम हवाई जहाज उड़ाते हैं तो रेडियो टेलीफोन पे ग्राउंड से बात होती है, एटीसी से बात करते हैं ऑफिस में, एयरक्राफ्ट में से, तो वो एयरक्राफ्ट टू ग्राउंड कम्युनिकेशन होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्पीक फॉर मिनिमम टाइम, सो दैट अगर कोई दुश्मन आपका सुन रहा है, he cannot get the language or the accent of the language that we speak. So everybody in Air Force speaks in the same tone. अगर कोई दुश्मन सुनेगा, उसको पता नहीं लगेगा कि कौन बंदा हवाई जहाज में है और कौन दूसरा है। तो इसलिए उन्होंने सबने अपना अपना नाम शॉर्टन कर दिया, और मेरा नाम शॉर्टन करके माइक राणा हो गया। तब से मैं माइक राणा ही जाना चाहता हूँ। तो सर ये ऑफिशियली भी अनम्यूट कर लीजिए सर। नहीं, इट्स ओके। जब मतलब लोगों से बात करते हैं तो माइक ही बोलते हैं, कोई मनमोहन तो बोलता ही नहीं। कोई पुराना कोई दोस्त मिल जाए वो जरूर बोलेगा मनमोहन, लेकिन बाकी सब लोग माइक बोलते हैं। सर आपको अवार्ड्स भी मिले हैं, विशेष सेवा मेडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये इसके साथ की जुड़ी हुई कुछ यादें होंगी आपकी, और इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेंथ रही कि आपको ये अवार्ड्स मिले, उसके बारे में प्लीज बताएं। ठीक है। A thing called AirStar, there was a software I developed, a major technical software which was conceived by me and designed by me, and it was simultaneously installed in the entire company, in the entire country on 30th November 1977, and it was implemented without any hiccup. It monitored the status of serviceability and fuel consumption of 1900 aircraft and 3500 aero engines from all over the country, including Assam. And when communication was through Morse code, telegrams, there was no email and nothing like that. So Morse code messages, which were popular in Second World War, that was followed. So मेरे bosses ने इसका नाम दिया था what the AirStar foretells. AirStar foretells about aircraft and aero engines much before the problems arise. तो इसकी जब प्रेजेंटेशन हुई तो हमारे एक एयर ऑफिसर कमांडिंग होता है, एक तो एयर ऑफिसर मेंटेनेंस होते हैं, उसने सबको बुलाया, प्रेजेंटेशन किया, और उसने एक ही क्वेश्चन पूछा लोगों से। आप जितने भी लोग बैठे, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर थे वहां डायरेक्टर लेवल पे, हाउ मेनी ऑफ यू नो एटलीस्ट द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हेल्ड इन आवर कंट्री? तो सब लोग चुप, नोबडी कुड आंसर दैट क्वेश्चन। और मैं जूनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट था एट दैट टाइम, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने इसका जवाब ठीक दे दिया क्योंकि मेरे पास सारा डेटा था। मैंने बोला जी 1900 वो हैं और 3500 एरो इंजन, सब लोग मेरी मुंह की तरफ देख रहे हैं, सो दे वर वेरी हैप्पी। तो इसलिए मुझे चीफ ऑफ एयर स्टाफ की कमेंडेशन मिली इस उसके लिए। उसके बाद क्या हुआ, मेरी पोस्टिंग हो गई 3BRD चंडीगढ़। 3BRD चंडीगढ़ इज ए वेरी नाइस बिग कॉम्प्लेक्स, 250 एकर्स में बना हुआ है। वहां पे कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते थे उन दिनों, मतलब एक कंप्यूटर को अगर आपने रखना है तो पूरा कमरा चाहिए होता, और साथ में बिजली चाहिए होती, काफी कुछ। लेकिन कंप्यूटर, उनका जो कंप्यूटर का पावर होती थी, दैट यूज्ड टू बी
जस्ट लाइक ए हैंड हेल्ड मोबाइल टुडे। इतना बड़ा कंप्यूटर वहां, और यहाँ एक मोबाइल पे वही काम हो सकता है। इमेजिन करो कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच। तो इस प्रोजेक्ट में मुझे, क्योंकि एक एक महीने में हमने इंस्टॉल किया था, जो नॉर्मली लोग 6-7 महीने लगाते थे, तो मेरे को एक अवार्ड दिया गया था, विशेष सेवा मेडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो प्रेसिडेंट से दिया गया था। अच्छा, इसके बाद मेरी कुछ प्रोजेक्ट्स थी। एक बड़ी मेजर प्रोजेक्ट थी जिसमें मैंने काफी काम किया, उसको बोलते हैं लो लेवल रेडार नेटवर्क। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, वो उस टाइम पे साइंटिफिक एडवाइजर थे डिफेंस मिनिस्टर। तो उसने ये बोला कि इसकी एक प्रोजेक्ट बनाओ। क्या प्रोजेक्ट थी कि जब फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट दुश्मन से आता है और ट्री टॉप हाइट पे आता है, बिल्कुल ट्री टॉप की जितनी हाइट होती है, तो उसको हम नॉर्मल रडार पे 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं देख सकते। अगर आजकल क्या होता है कि 1000 किलोमीटर भी उड़ रहा है तो हमें नजर आ जाता है, लेकिन जो छोटा नीचे आके आता है उसको सिर्फ 50 किलोमीटर देख सकते हैं। तो क्या तरीका था, हमने उन दिनों सैटेलाइट यूज किया। सैटेलाइट के थ्रू उसके रडार के ट्रैक्स सैटेलाइट में भेजते थे और उसको वापस जमीन पे लाते थे। तो अगर हम 3 रडार लगा दें तो 50 50 50 150 किलोमीटर की डेप्थ हम कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह के एक सेट ये 3 रडार का हुआ, और वही वैसे ही पूरे जम्मू कश्मीर से लेके भुज तक पूरे बॉर्डर पे 3-3 रडार इंजीनियरिंग के लगाए गए। तो इसका मतलब हजारों वो हो गए। और जब सैटेलाइट पे इसका इमेज जाता था, उसमें से अगर एक इमेज को 5 रेडार ने ट्रैक किया है तो वो हम तो देखेंगे 5 हवाई जहाज है, लेकिन होता तो एक है। 5 हवाई जहाज को एक कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ी साइंस लगी, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स एल्गोरिथम लगे। तो वो एक प्रोजेक्ट थी। जब हमने इनको बोला, रशिया और अमेरिका से हमने कोट किया, वो कहते कि 100 करोड़ रुपया लगेगा और 10 साल में हम बना के देंगे आपको। तो ये अब्दुल कलाम साहब ने कहा नहीं, ये हम खुद बनाएंगे, और डीआरडीओ को हमें दी, 10 करोड़ रुपया दिया और 18 मंथ में हमने कंप्लीट किया। इसमें मैं आई वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप। ऑफकोर्स इसमें कोई मुझे अवार्ड नहीं मिला, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ही दिल खुश करने वाली। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि देयर वाज अ सेइंग इन द एयरफोर्स कि मेरी एज थोड़ी कम थी। मैं मतलब 20 साल का मैं पायलट ऑफिसर बन गया था। तो जो दूसरे लोग थे मेरे से 2 साल, कम से कम 2 साल बड़े थे मेरे से, तो वो ये कहते थे कि आई वुड रीच द टॉप लेवल ऑफ एयर मार्शल and stay in that position for 4 long years, which means my successors were very unhappy about it. They would that, by that time they would have retired and they would have gone superannuated. So जब मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट की तो बड़ी सक्सेशन में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ वहां कि थैंक गॉड ही इज गॉन, नाउ वी हैव द चांस टू बिकम एयर मार्शल। ये आपके दिल के नजदीक की बात है। हाँ, बहुत बहुत। तो सर, आप इतनी सफलता से ये कार्य कर रहे थे, तो आपने इस बीच जिस वक्त आप दिल्ली में एज ग्रुप कैप्टन काम कर रहे थे, तो उस वक्त आपने फिर वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो इतनी अच्छी गाड़ी चल रही थी, इतनी सफलता से, और छोटी एज में आप आगे टॉप तक पहुंच सकते थे। तो इसका क्या कारण रहा कि आपने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के और इसके साथ आप फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए? तो उस वक्त आपका क्या विजन था, क्या सोच रहे थे आप? एक ही है, पैसा नहीं मिलता था एयरफोर्स, काफी काफी हमें वो मिलती थी, इज्जत मिलती थी, सब कुछ होता था। एक बार क्या हुआ, मैं 17 सेक्टर में गया, अपनी मेरी बेटी मेरे साथ थी, छोटी वाली, तनुश्री नाम है उसका। तो उसने मुझसे एक कप आइसक्रीम का मांगा। तो आइसक्रीम का कप मुझे लगा कि काफी महंगा होता है, तो मैंने कहा ठीक है चलो एक कप दे देते हैं। लेकिन वो कहने लगी नहीं, मुझे तो 2 चाहिए। अब इस बात पे हमारी झगड़ा हो गया कि 2 कप कैसे, आजकल तो हमने कभी सुना ही नहीं कि कोई आदमी 2 कप भी पीता है। खैर, उसके बाद क्या हुआ, एक 2-4 दिन के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ 17 सेक्टर में गई। वहां पे बेनेटॉन की टी शर्ट उसको पसंद आ गई, 60 रुपए की उसका कीमत था। तो 60 रुपए तो बहुत उन दिनों बहुत ज्यादा होते थे। तो हमारे जो कैंटीन में हमें जो मैन की एक सैंडो वाली टी शर्ट मिलती थी, बनैन मिलती थी,
वो 2 रुपए की होती थी, तो ये 60 रुपए, मतलब 30 बनियान का एक ही कॉस्ट में। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी गलत बात है। अब टाइम आ गया है कि मुझे एयरफोर्स को छोड़ देना चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए। दिस इज वाई आई लेफ्ट द एयरफोर्स एंड ग्रुप कैप्टन। आई वॉज अ ग्रुप कैप्टन एंड कमांडिंग एन एयरफोर्स स्टेशन नजफगढ़। सो वो भी मेरा ये डिसीजन को स्टॉप नहीं कर पाया। क्यों? हालांकि ये था कि ट्रैफिक पुलिस क्लियरिंग वाले जो होते थे, वो मेरे को, जब मैं निकलता था, मेरी गाड़ी निकलती थी, तो लोगों को साइड में कर देते थे, क्राउडेड स्ट्रीट्स में जाते थे, तो मेरे को बड़ा खुशी होती थी कि देखो मेरे लिए जगह खुल रही है। फिर छत के ऊपर वैनिटी रेड लाइट लगी हुई थी, लाइट जलती रहती थी वो, पर वो मतलब पैसा का कोई मतलब नहीं था। मेरे पास 40 के 50 गाड़ियां भी थी कंपनी की तरफ से ऑफिस में, लेकिन पैसा नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो ऑफिस को, मैं छोड़ छाड़ के, नौकरी छोड़ के मैं आ गया। और उसके बाद देखो चेंज ये हुआ कि अब मैंने 4 डिफरेंट हाउसेस खरीदे, उनको डेकोरेशन किया, और अब फाइनली हम आके बेलमोंड में सेटल हुए। बिल्कुल मतलब लग रहा है कि फर्स्ट क्लास है। सर, वो जो रेड लाइट होती है ना, वो बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा ख्वाब भी होती है, उसके लिए लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट सिंस यू अचीव्ड इट, तो इसलिए आपको आगे बढ़ने की इच्छा थी। तो आपका उस वक्त विजन क्या था, क्या सोच के आप बाहर आए और किस तरह से फिर कॉर्पोरेट लाइफ में आप सेटल हुए? जो आप ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, एम डॉक्स, साइप्रस, और जहाँ जहाँ आप गए, कुछ इजराइल को लेके बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हैं आपके, तो ये कहानियां हम सुनना चाहेंगे आपसे उनके बारे में। कॉर्पोरेट लाइफ, पहले तो सबसे पहले जब एयरफोर्स छोड़ी तो मेरे को नौकरियां मिली 3 अच्छी नौकरियां थी। जनरल मैनेजर था मैं, जनरल मैनेजर टेक्निकल इन डेटा प्रो, उषा इंटरनेशनल, स्पाइस टेलीकॉम चंडीगढ़ वाली, इनका सब मैं जीएम था। लेकिन तब मजा इतना नहीं आया। ठीक है, सब कुछ फैसिलिटीज मिली। फिर क्या हुआ, एक इजरायली कंपनी थी, एमडॉक्स, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, ए नॉन इजरायली प्रोजेक्ट मैनेजर टू बी वर्किंग इन इजराइल। उन्होंने सैलरी मुझे दी $3000। तो मेरे मतलब हवा होश ही उड़ गए थे जब उन्होंने बोला ये आपको $3000 मिलेंगे। और उसके बाद एवरी डे दैट आई गो आउट दे विल गिव मी $50 पर डे, मतलब खर्चा अलग और $50 मेरी जेब में डाले गए। तो क्या होता था, मैं जाता था बाहर, 5 स्टार होटल में रहता था 20 days a month, और कंपेयर टू एमईएस फ्लैट्स, आप देख लीजिए एमईएस के फ्लैट्स कैसे होते हैं, तो वहां वो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं था। और ऐसा भी हुआ कि प्लेंटी ऑफ टाइम्स, एक एक दिन में ही ब्रेकफास्ट किया फ्रैंकफर्ट में, लंच किया लंदन में, और डिनर किया पेरिस में एक ही दिन में, और सोने के लिए लाउंजेस, एयरपोर्ट के लाउंज में जाके सो गए। तो इस तरह से कॉर्पोरेट लाइफ मेरी शुरू हुई। उसके बाद मैं चला गया साइप्रस में। तो साइप्रस में देयर वर 1000 पीपल फ्रॉम ऑल कंट्रीज लेटर ऑन। उसमें से किसी ने कोई अपना घर नहीं खरीदा। मेरे को पता नहीं, भगवान ने कहा कि तुम घर खरीद लो, तो मैंने वहां अपना अपना फ्लैट लिया साइप्रस में, जो मैं बाद में आपको जब मैं आया तो बेच आया। तो वो 30,000 नहीं, $60,000 का लिया था, और आते वक्त $1,20,000 का बिक गया, और किराया भी कोई नहीं दिया। तो मतलब दैट वाज एन अचीवमेंट। So in this period, they also made me to travel to all over the world, Europe, Spain, Canada, North America, 10 different cities in North America. फिर उसके बाद एक ड्रेडेड जगह थी कोलंबिया, जहां कोई जाता था उसको किडनैप कर लेते थे। तो उसको जो भी जाता था उसको पुलिस फोर्स देते थे, पूरा ट्रक का ट्रक आता था लेने के लिए। जब हवाई जहाज से मैं निकला तो मेरे सामने खड़ा एक ट्रक, मैंने कहा ये मुझे लेने आए हैं, मतलब सेफ्टी के लिए आए हैं कि मुझे किडनैप करने आए हैं? तो इतना डेंजरस था। तो खैर ये ट्रेवल्स करते रहे और अच्छा अच्छा रहा सारा कुछ। फिर एक प्रेजेंटेशन हुई मलेशिया में जी। शाम को। मैं गया लंदन, उसके बाद गया अमेरिका, और वहां फोन आया कि आप सीधा मलेशिया चले जाओ। तो एक दिन बीच में सारा का सारा ही काट गया। मतलब वन डेट आई डिड नॉट सी इन माई लाइफ। आई स्टार्टेड ऑन सम डे एंड came to Malaysia the next day, उसी दिन।
तो वहां पे क्या था, एक सैटेलाइट बेस्ड कंपनी थी जो एंटरटेनमेंट, मतलब जैसे नेटफ्लिक्स है आजकल, वो लोग कंपनी उन्होंने बनाई थी। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर था, एक बिलिंग का काम होता था उसमें, एक कस्टमर सर्विस, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव था। सो बिलिंग एंड सीआरएम को इंटीग्रेट करके उनको एक सोल्यूशन देना था जो हमारे पास था नहीं सोल्यूशन। तो मैंने दिमाग में अपना सोल्यूशन बनाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको समझाओ सारा। तो मैंने समझाया, बाई चांस उनको बहुत पसंद आ गया तो उन्होंने वो खरीद लिया। $18 मिलियन की वो हमारी थी। और उसमें मैं बड़ा खुश, साइकिल वापस गया, देखो मैं $18 मिलियन लेके आया। वहां जाके मुझे डांट पड़ी। डांट भी क्यों, क्या हो गया कि जी आपने तो हमारी लॉस करा दिया। $18 मिलियन अगर हम देंगे तो हम 3 साल कैसे सस्टेन करेंगे, हम तो लॉस में चले जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, फिर खैर वो मान गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो तो अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो गया। बहुत सक्सेस आजकल भी चल रहा है, वो वही सॉफ्टवेयर चल रहा है जो हमने उस टाइम बनाया था। कितने साल हो गए पता नहीं, बहुत वो चल रहा है। और तो इसी सर दौरान आप, हाँ, हाँ जी, आप जो कह रहे थे आप कहिए प्लीज, आप कहिए सर, जो आप बता रहे थे। मैं इसी बारे में आपके कॉर्पोरेट लाइफ की जो आपके अवार्ड्स मिले थे उसके बारे में जानना चाह रही थी। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में जो काम किए हैं उसमें आपने बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन्स हुए, आपको बहुत एक अलग जीवन मिला। और एक बार दर्शकों के लिए ये भी बताना चाहेंगे कि ये किस ईयर की बातें हैं, आपने वीआरएस किस ईयर में लिया था, और ये जो कॉर्पोरेट लाइफ जिसकी बातें हम कर रहे हैं ये कब की बातें हैं, किस साल की? ये 1994 में मैं रिजाइन कर गया था। 1994 के बाद की कॉर्पोरेट लाइफ मैंने देखी है। तो 2004 तक कॉर्पोरेट लाइफ में मैं रहा। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ आया तो लोगों ने कहा चलो कुछ नौकरी करते हैं। तो मैं गया एयरटेल के पास, होता है डायरेक्ट टेक्निकल सर्विस का आपको डायरेक्टर बना देते हैं, तो सबसे बड़ी पोस्ट है ये टेक्निकल लेवल की, आप आ जाइए। मैं एक दिन गया वहां, तो वहां पे जो एटीट्यूड था लोगों का वो इतना खराब था कि मतलब हर चीज में हेरा फेरी करो। तो मैंने कहा मैं यहाँ नहीं काम, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। तो अच्छा, सर एक मैं जी सर कहिए। अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारी डॉटर जो है उनको मैंने बहुत, सब लोग करते हैं, हमने भी किया, लेकिन हमने हमारा ये प्रिंसिपल रहा कि उनको इंडिपेंडेंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अपने आप पे खड़े हो सके। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 19 आई थिंक इन 70s मैं उनको लाइफ मैगजीन आती थी जिसके ऊपर फोटो थी कैनेडी की, कैनेडी कैनेडी ऐसा हुआ था ना, कैनेडी मरा था, कैनेडी कैनेडी की फोटो थी उसके पेज की। तो मैं लाया घर में, तो ये कही ये क्या है, मैंने कहा ये लाइफ मैगजीन है, इसमें बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, बड़े बड़े लोग। उसके बाद मैंने उनको इंटीरियर डिजाइन की मैगजीन खरीद के दी 17 सेक्टर से। फिर मैं सरोजनी नगर आता था तो उनके लिए एक्सपोर्ट सर्विसेज खरीद लेता था, गारमेंट्स। तो ये लोग बहुत खुश होते थे, और इनका जो अपब्रिंगिंग थी वो लिविंग इन इंडिया इटसेल्फ, दे वर लाइक एन इंटरनेशनल पीपल। उनको उनका जो एटीट्यूड था, ड्रेसिंग सेंस थी, इंटीरियर डेकोरेशन का था, वो सारा उसी तरीके से बदल गया। तो अभी जैसे मेरी छोटी बेटी है तनु, वो डिजाइनर है, कंप्यूटर डिजाइनर है। वो कंप्यूटर डिजाइनर करती है। वो उसके क्लाइंट्स हैं गोल्फ क्लब और शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन के साथ उसने 10 साल काम किया। शहनाज हुसैन के साथ उसके, जो मेरा दूसरा एक मेरा सन इन लॉ है बंटी, वो देवानंद की पिक्चरों में काम करता था पहले। उसने देवानंद के साथ काम किया, देवानंद के बचपन के रोल किए हैं उसने। और वो फिल्म स्टार की प्रमोशन वगैरह करता देखता है बॉम्बे, तो वहीं रहता है। एक दूसरा जो मेरा सन इन लॉ है उसका नाम है प्रतीक चतुर्वेदी। वो सेम काम करता है, लेकिन वो प्रमोशन ऑफ स्टार्स करता है, जैसे कपिल देव, विराट कोहली, इनके साथ काम करता है वो। और आज ही वो अभी मेरे को मैसेज आया था, ही वेंट टू निजामुद्दीन फ्रॉम गुड़गांव ऑन साइकिल। तो 75 किलोमीटर साइकिल पे चला के उसने मतलब
आज अभी अभी आया है। और मेरी वाइफ जो, उसको तो आप लोगों ने स्ट्रीम यार्ड पे देखा ही है गाने गाने के लिए। तो ये हमारी फैमिली है, तो इसके साथ आई फील क्वाइट प्राउड। सर बहुत सुंदर परिवार है आपका और बहुत सुंदर जीवन है। जिस तरह से आपने बताया, आपने प्रोग्रेस की, बहुत अच्छी एजुकेशन ली। गुड़गांव बेस्ड हैं सर इस वक्त माइक राणा जी, और इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी देश विदेश भी घूमते रहे हैं, उसके बाद भी बहुत देश विदेश में घूमे हैं, और बहुत खुश हैं अपनी डॉटर्स को जिस तरह से इन्होंने पाला है, जिस तरह से वो बड़ी हुई हैं। तो यहाँ हम उनके जीवन से जुड़ी हुई एक वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह का जीवन ये जी रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे जो म्यूजिक आवाज आ रही है एक एकॉर्डियन की, वो इन्होंने खुद बजाया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। उसको एंजॉय कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और इस जो वीडियो को देखने के बाद हम बातचीत आगे कर रहे हैं, और ये बातचीत आगे और भी रुचिकर होने जा रही है, क्योंकि हम उसमें बात ये भी करेंगे कि ये जो इन्होंने टाइटल दिया है हीरो टू हीरो, ये क्या कहानी है। तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। तो कितनी खूबसूरत ये आवाज़ थी और कितनी खूबसूरत ये वीडियो थी। मैं तो उसी में खो गई थी, एक सेकंड के लिए मैं रुक गई, मुझे लगा कि शायद अभी और चलेगा, इंतज़ार कर रही थी अगले सीन का, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे दर्शक वेट कर रहे हैं, उनसे बात करनी है। तो दर्शकों, कितना खूबसूरत लगा आपको, आप बता भी सकते हैं अपने आंसर्स में। यहाँ जो लाइव चैट है इस म्यूज़िक के बारे में, इस वीडियो के बारे में, जो भी आपके विचार बनते हैं। तो सर, हम बात कर रहे थे, हमारा एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि म्यूज़िक की बात हुई है, तो म्यूज़िक से आपका जो रिश्ता है वो किस तरह का है? कैसे आप म्यूज़िक से बंधे, किस एज से शुरू हुए, और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे कि इतनी परफेक्शन के साथ आप बजा रहे हैं? जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, यस। ठीक है। तो ऐसा है कि ये म्यूजिक के बारे में मेरे को अपने फादर ने
जब वो इटली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम गए थे, तो उन्होंने वहां से एक अकॉर्डियन खरीदा था। वो अकॉर्डियन ले आए घर में हमारे। हमको पता ही नहीं था कि ये चीज क्या है। उसको बटन देखते थे लेकिन पता नहीं लगता था कैसे चलाना, और उन दिनों किसी को पता नहीं था। तो हमने थोड़ा बहुत उसको बजाना शुरू किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बजाए थे थोड़ा थोड़ा, कभी कभी कॉलेज मतलब एयरफोर्स में भी बजा दिया। लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ये अपने जो अंदर की आपकी फीलिंग्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स लाइक ए फुल बैंड। तो इसको मैंने पूरा म्यूजिक को उस तरह से स्टडी किया, सारे कॉर्ड समझे, उसके सारा क्या टेक्निक है वो समझा, और मैं एक लाइक ए प्रोफेशनल आई स्टार्टेड प्लेइंग अकॉर्डियन। उसके बाद हमने एक चैनल बनाई, द आर्ट्स पीपल, TAP। ये यूट्यूब पर है। उसमें आजकल 368 एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जो मतलब हमें एक्टिवली फॉलो करते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं किया तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको फॉलो करें, और अच्छा आपको म्यूजिक मिलेगा वहां। हमने टैब के थ्रू 5-6 मेजर फंक्शन किए थे, एपी सेंटर में, इंडिया एजुकेशन सेंटर में, और पता नहीं कहाँ कहाँ। खेमचंद प्रकाश के गाने गाए, ब्लैक एंड व्हाइट रिवाइवल किया म्यूजिक से। फिर पाम्स क्लब में खयाम माइलस्टोन्स किया, और उसमें काफी लोग आए, और काफी लोग पैसे दे के आए। ये नहीं कि मतलब मुफ्त में किया, पैसे दे के आए। तो अब ये है कि अब अकॉर्डियन बजाता हूँ। अभी 50 के करीब गाने मैंने सीख लिए हैं, हाथ बैठ गया है। तो ये तो हमारी जर्नी हो गई। अब तो आपको मैं सर, ये बताना चाहता हूँ। हाँ। म्यूजिक की जर्नी में आपकी जो मैडम हैं, मैडम ज्योत्सना राणा, वो भी म्यूजिक से हैं। तो इसमें आपको उनसे कितनी हेल्प मिली, या इसमें आप सिखा पाई उनको, या उन्होंने आपको सिखाया? बिकॉज बोथ ऑफ यू यू आर परफेक्ट। नहीं, बोथ परफेक्ट नहीं है हम, बोथ नहीं है परफेक्ट। दोनों ही लर्निंग स्टेज पे हैं, और सारी उम्र तक हम सीखते ही रहेंगे। तो ये वो हमको सिखाते थे, हमको कल कल मेरे को वो बताएंगे ये गलती होगी, मैं बताऊंगा ये गलती होगी, या जब जो हमें सीखते हैं बताते रहते हैं। लेकिन जो मेरे बाकी लोग हैं, जो वो काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत अच्छा सिखा देते हैं और करते हैं। इसमें ये हुआ कि एक हमने प्रोग्राम किया था 2015 में, टैप का फंक्शन था। वो हमारे बेलमाउंट के क्लब में किया था। 150 के करीब लोग आए थे उसमें देखने के लिए। वो देवानंद के ऊपर था। जैसे अब देवानंद का म्यूजिक का प्रोग्राम आ रहा है, देवानंद का जन्मदिन आ रहा है 26 तारीख को शायद, तो अब दोबारा से करेंगे, लेकिन हम ऑनलाइन करेंगे, राजस्थान की टेलीविजन चैनल पे चलेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन जब हमने 2015 में किया, मेरा फेस थोड़ा डिस्टॉर्ट होना शुरू कर दिया, और मेरी डॉटर ने देख लिया कि ये फेस तो आपका डिस्टॉर्ट हो रहा, आप गाना बजाए जा रहे हो। तो मेरे को उठा के ले गई वहां से, और सीधा मुझे मेदांता हॉस्पिटल वहां जाके, तो मैंने लगा यार ये तो पता नहीं क्या हो गया मुझे। फिर वहां डॉक्टर ने मुझे बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे, जिनका मैं जवाब ही नहीं दे सका। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा 2+2, मैंने कहा 4। 2+3, मैंने कहा 15। फिर व्हाट्स द नेम ऑफ योर वाइफ, मैंने कहा पता नहीं जी। व्हाट इज गूगल, आप जानते हो गूगल को, मैंने कहा नहीं पता नहीं क्या है। फिर सारे पासवर्ड सब भूल गया। तो ये जब सब कुछ हुआ तो मतलब जीरो ही बन गया ना मैं एक किस्म से। इलनेस ऐसी हुई कि हीरो था और जीरो, कुछ नहीं पता, कुछ याद। So my illness was so close to death. Over 90% blockages of carotid arteries. I saw the shadow of death on my hospital bed. As luck would have it, I changed from zero to hero once again. So at the age of 75, now I feel reinvigorated, particularly after Corona. My good luck and God's grace. सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा ट्रैवल करना चाहिए। आई वेंट टू डालियन सिटी इन चाइना। लोग कहते हैं चाइना बहुत बुरा है, नहीं जाना चाहिए, वहां खाने को कुछ नहीं मिलता, सब कुछ नॉन वेज होता है। मैं विदाउट एनी कंपनी और विदाउट एनी होस्ट, नो ईटिंग, नो व्हीकल्स, आई वेंट टू दैट सिटी। इट इज वेरी क्लोज टू नॉर्थ कोरिया, बहुत दूर है यहाँ से। सारी एंटायर सिटी को मैं चल चल के देखा, और 10 किलोमीटर a day I used to walk. No time for watching movies or going to visit any mall. But
देयर वर वेरी वेरी गार्डन्स एंड पार्क्स वेयर, वहां पे चाइना में मैंने पहली बार देखा था कि गार्डन में लोग इकट्ठे होते हैं और रात को 10 बजे के करीब देयर इज ए ग्रुप डांस, कोई 100 के करीब बंदे डांस करते हैं और 2-3 बंदे सिखा रहे होते हैं और काफी देर चलता है वो प्रोग्राम। तो वो किया, तो मतलब ये काइंड ऑफ रिकवरी, मैं समझता हूँ कि मेरी रिकवरी हुई है इस तरह से। वहां से फिर मैं वापस आया तो फिर देन आई फेल्ट इट, नॉर्मल। हालांकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 6 महीने तक आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप सिर्फ चलो, सिर्फ पैदल चलो, सिर्फ पैदल चलो, पर ये चलो जैसे हमने कर लिया। इससे पहले भी मैं ट्रेवल किया हूँ, रशिया में गया हूँ। वहां पे मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस ये था कि जो लोग हैं ना, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बड़े ट्रूथफुल हैं लोग, और उनकी जो सिटीज हैं बहुत नीट हैं, बहुत क्लैरिटी है और ऑर्डरलीनेस है वहां पे। तो उसके बाद अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं, क्योंकि अब तो कोविड आ गया, तो कोविड के बाद चेंज टू वर्स, एंड नो मनी, नो ट्रस्ट ऑन डॉक्टर्स, नो ट्रस्ट ऑन एनी वैक्सीन। तो अब क्या करें, तो हमने वो सब छोड़। तो इस बीच में मैंने किताबों पे ध्यान दिया। अब आप पूछिए यस किताबों के सर। बारे में। जी सर, किताबों के बारे में ये पूछना चाहते हैं कि आप जिस वक़्त एयर फ़ोर्स में थे, तो आपने बताया कि आपकी हैंडराइटिंग की वजह से आपको बहुत ऑनर मिला वहाँ पे भी। तो इसका मतलब राइटिंग स्किल आपके अंदर पहले थी, तो जो आपका पहला कभी आर्टिकल कोई छपा या बुक छपी सबसे पहले, तो वो आपने जब लिखना शुरू किया, तो क्या सोच के, क्या विचार था आपके मन में? क्या विज़न लेके आपने लिखना शुरू किया? ये बताएँ सर। तो पहले तो ये है कि शुरू शुरू में हम सिर्फ टेक्निकल लिखते थे, कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर किसी को मालूम नहीं था उन दिनों, आज से 50 साल पहले की बात है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, और टेक्निकल से मैं नॉन टेक्निकल में भी आ गया। नॉन टेक्निकल मतलब एक ही चीज हमें मालूम थी, पॉलिटिक्स रोज भी देखते थे तो पता लग जाता था। तो हमने सोचा कि चलो राइटर बन जाते हैं, तो हमने लिखी 4 किताबें। अब किताबें लिखने का बड़ा मुश्किल काम है। क्यों क्या मुश्किल है? सबसे पहले तो जॉनर पता नहीं लगता कि फिक्शन लिखें कि नॉन फिक्शन लिखें। और अगर नॉन फिक्शन लिखा तो उसमें तो कैरेक्टर होते नहीं है, प्लॉट होता नहीं है। और अगर वो लिखा, फिक्शन लिखा, तो कैरेक्टर बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, आपके लोगों को इंटरेस्टिंग लगने चाहिए। तो हमने क्या किया कि चलो पहले हम एक फिक्शन लिखेंगे और 3 दूसरी नॉवल, एक कोरोना के ऊपर लिख दी, और एक सिटीजन मैनिफेस्टो लिख दी, एक वंडरफुल वर्ल्ड लिख दी। इन तीनों में सबसे बड़ी चीज ये जो नजर आई मेरे को कि ये ओपिनियटेड किताबें होती हैं। जैसे आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये मैं सोचता हूँ और इसी तरह से चीज होनी चाहिए। लेकिन वो लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे डिपेंड करता है। अगर आपकी बड़ी अच्छी स्टैंडिंग है तो लोग पढ़ लेंगे, अगर आप छोटे मोटे बंदे हो तो आप जो मर्जी लिखते रहो, कोई पढ़ेगा नहीं। और इंटरनेट पे क्या होता है कि लोग पढ़ने के लिए नहीं आते, लोग जो अपना लिखा होता है वो लोगों को समझाने के लिए कि मैंने ये लिखा, ये नहीं देखते कि क्या लिखा है, दूसरे ने क्या लिखा है, उसको लाइक भी कर देंगे तो मतलब मीनिंगलेस है वो। सो बड़ा मुश्किल है ये। सो अब मैंने ये सोचा है कि नॉन फिक्शन है, उसको भी फिक्शन की तरह लिखा जाए। मतलब उसको एक प्लॉट बनाए, उसमें काफी कैरेक्टर्स ले लो जो रियल टाइम भी हों और कोई इमेजिनरी भी हों, और आप एक ऐसी स्टोरी बनाओ कि जिसका जो मीनिंग है, जो आपके अंदर दिमाग में चल रहा है, वो सब उसको पता लग जाए जो पढ़ने वाला है, और वो पढ़ता चला जाए। ये नहीं कि एक 10 पन्ने पढ़े तो यार ये बड़ी बोरिंग है, इसको नहीं पढ़ना, नहीं, वो कंटिन्यूटी में पढ़ता रहे। पेज टर्नर हम बोलते हैं इंग्लिश में, पेज टर्नर होना चाहिए कि हर एक पेज टर्न करते अगला पेज, अगला पेज, अगला, ऐसे ऐसे। तो वो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने अब नई बुक लिखी है, जो मतलब डेमोक्रेसी जो बुक लिखी है, उसमें ये बड़ी मेन चीज है। पहले मैंने वो लिखी एज ए नॉन फिक्शन बुक, 300-350 पेज लिखी। फिर मैंने एक पिक्चर देखी, उस पिक्चर का नाम है हाउ टू बिकम अ टायरेंट, नेटफ्लिक्स पे है, हाउ टू बिकम अ टायरेंट। तो जब पिक्चर देखी तो मैंने कहा हम तो, मैं इतना भी, ऑल माय नोबल थॉट्स फॉर द लीडर्स आर ऑल वॉश्ड अवे, मतलब सब लीडर ऐसे ही हैं। हिटलर था, मसोलिनी था, तो जो मेरी किताब है वो कौन पढ़ेगा? सबको पता है कि लीडर ऐसे ही होते हैं, जो मर्जी प्रॉमिस करते रहे लेकिन देंगे नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं, इसका मैं प्लॉट बनाऊं, और प्लॉट बनाने के बाद उसमें कैरेक्टर डाल के, तो मेरे पास दो एग्जाम्पल्स थे। एक तो जॉन स्टेनबेक है, उसने ग्रेप्स ऑफ रात लिखी, ग्रेप्स ऑफ रात, इसको पुलिट्जर बुक प्राइज मिला है वर्ल्ड में। और उसने भी ऐसी किताब लिखी जिसको पूरा 1 साल लगा
लोगों को समझने के लिए कि दिस इज ए नॉन फिक्शन नॉवल, क्रिएटिव नॉवल इन नॉन फिक्शन। सो अब उस हिसाब से ये सारी किताबें बदल के अब मैं लिखूंगा उसको। जी, बहुत सुंदर। आप न्यू क्रिएटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं। नाम भी आपके, जैसे मैंने शुरू में बोला, कि बहुत अलग हैं, अट्रैक्शन होती है और दिल करता है कि पढ़ें इनको। तो सर, आपने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, तभी आप यहाँ तक लेखन में पहुंचे हैं। तो हम आपकी इंस्पिरेशन चाहेंगे कि किस तरह से आप लेखन में यहाँ तक पहुंचे, तो उसके लिए किस तरह की रीडिंग आपने की, और इसके साथ ही कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनके बहुत क्यूरियसली जुड़े हुए हैं, उनके बड़े प्रश्न हैं इस क्वेश्चन के बाद में। वो उनके जो प्रश्न हैं मेरे इस सवाल के बाद, कि आप पढ़ते क्या हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ तक आप पहुँचे हैं। मुझे सोच के ही हैरानी हो रही है कि एक छोटे से पीरियड में आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं और इतने नॉवल आइडियाज के साथ। तो व्हाट डू यू रीड, या पहले जो पढ़ा है आपने? देखिए जी, पढ़ने के लिए देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट रीड, यू रीड एवरीथिंग। आर्टिकल्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, चाहे किसी ने अच्छी किताब लिखी है वो भी पढ़ो, जिसने अच्छी नहीं लिखी है वो भी पढ़ो। तो जितना भी आप पढ़ सकते हो। हमारे घर में ये रिवाज है, खासतौर पे मेरी वाइफ और मेरा, कि हम बहुत पढ़ते हैं। वो बुक्स पढ़ती हैं, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। और आजकल तो दे आर नॉट लाइक बुक्स, दे आर लाइक ए न्यूज आइटम। आपको लंबी सी एक आर्टिकल मिलेगा, 10 पेजेस का होगा, उसको आप पढ़िए, आपको पूरा बुक का पता लग जाएगा। तो ये सब चीजें पढ़नी बहुत जरूरी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आपने जब बुक लिखी है तो उसको पब्लिश कौन करेगा, उसको पढ़ेगा कौन? फिर आजकल तो सेल्फ पब्लिशिंग चल रही है, आप खुद ही पब्लिश कर सकते हो सब कुछ। तो पैसे दे दो किसी को और आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। मतलब मोस्ट ऑफ द बुक्स दैट आई रीड नाउअडेज दे आर ऑल सेल्फ पब्लिश, लेकिन उनमें भी काफी अच्छा है। जो माइक रानाज बुक्स एंड ब्लॉग्स, उसमें 150 फॉरनर है मेरे पास। तो उनके जो कमेंट्स होते हैं ना, एक एक कमेंट जो है वो एक एक दो दो पैराग्राफ में होता है, और हर एक कमेंट में उनकी ऐसी अच्छी चीजें बताते हैं वो लिखने के बारे में। वहां से सब कुछ आइडिया आते हैं कि जितना पढ़ोगे उसी तरह से अच्छा लिख सकते। और तनुश्री राणा का एक प्रश्न आ रहा है, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? इसके साथ ही, क्योंकि थोड़ी साउंड की भी प्रॉब्लम है, तो मैं अपना जो मेरे प्रश्न है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक हमारे जो दर्शक हैं नील आनंद, वो जानना चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक लवर्स के लिए आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे? और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीक? सबसे पहले तो मतलब हमारी क्या बुराइयां क्या हैं ये तो सब अच्छाइयां बना दी। तो मेरी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, मैं समझता हूँ कि उसको समझना चाहिए, मेरे को समझना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए। रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप, आई एम वेरी वीक इन ह्यूमन रिलेशन। क्यों, क्या होता है कि जब आदमी बहुत डीपली किसी चीज को सोचता है तो उसको लगता है कि सब लोग भी वैसे डीपली सोच रहे हो, सब लोग ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कि मेरे को वो जो वो बोलते हैं वो मेरे को सूट नहीं करता। आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एंड नॉट ओनली फ्रेंड, इवन इन माय रिलेटिव्स, जो हमारे रिलेशन है वो भी मेरे से डरते हैं, क्योंकि कोई कहेंगे कि कभी ये कुछ ना कुछ बोल देगा। तो ये मैं बहुत बड़ी वीकनेस है, इसको मैं ट्राई टू रिकवर कर रहा हूँ। 75 ईयर्स के बाद शायद रिकवर हो जाए, थोड़ी पेशेंस आ जाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है मेरे लिए। यार तुम तो ऐसी बातें करते हो जो हो नहीं सकती। मतलब हो क्यों नहीं सकती भाई? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये कुछ कर दिया तो कोई छोटी सी बात करें ये क्यों नहीं हो सकती? तो ये मतलब उनसे भी यही झगड़ा। तो ये ह्यूमन रिलेशंस की जो बात है ये थोड़ी पिंच करती है कि मेरी वाइफ इतनी बढ़िया, मेरी बेटियां इतनी अच्छी, वो उन्हीं से लड़ पड़ता हूँ मैं। तो सर, आपके बहुत से दर्शक साथ जुड़े हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं, गायत्री, तनुश्री, नील आनंद, मृदुला जोशी, इसके साथ रानी, और सबको आपका कार्यक्रम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं भी बातों में व्यस्त थी। सुनीता धारीवाल जी ये फील कर रही हैं कि ये बहुत ही कैप्टिवेटिंग एंड एनकरेजिंग इंटरव्यू है। नील आनंद जी का कमेंट है, वेरी ग्राउंडेड पर्सन। और बहुत से कमेंट्स में पढ़ नहीं सकी मैं, इनफैक्ट सर की बातें इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि मैं उसी में ही खो जाती हूँ बातों में, और वो मैं पढ़ नहीं पाती। अगर दोबारा फ्लैश होंगे तो वी कैन रीड द कमेंट्स वंस अगेन। एक इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें उन्होंने, मैम ने ये बोला था कि मैंने कहा सोशल सर्विस में, समाज सेवा में आप कैसे जुड़ी हैं?
तो उनका ये था रिप्लाई, पहला सेंटेंस, कि वो शायद हम अपने लिए ही करते हैं, कि जब हमने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, लेकिन फिर भी हर एक का अंदाज अलग होता है। जब हम अपने लिए भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई सोसाइटी में ऐसा है, समाज में ऐसा है जिसको फायदा हो रहा है। आपकी मैंने जो स्टोरी पढ़ी है उसमें बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ है कि आप अपनी मेड की बेटी के लिए जो कर रहे हैं शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो एक ये मोटिवेशन होगी सभी को। तो आप वो स्टोरी अच्छे से हमें बताएं डिटेल में कि वो किस तरह से आपने ये शुरुआत की और किस तरह से आप आगे चल रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये रिलेशन अगर आप इतने अच्छे से संभाल रहे हैं तो जो आपने दोस्त और जो रिश्तेदार जिनसे किसी वजह से आपका, मुझे लगता नहीं कि आपका रिलेशन कहीं स्पॉइल हो सकता है, लेकिन अगर हुआ है तो आप वो भी बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। आप में वो ताकत है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो सर ये एक स्टोरी सुनना चाहेंगे आपसे पीहू की। देखिए जी, हमारे घर में एक एक ड्राइवर है और एक उसकी वाइफ है। उनको हम सर्वेंट तो नहीं कहना चाहिए, वो हमारे फैमिली के ही मेंबर हैं। पीहू नाम है उनकी बेटी, 4 साल की है वो। और उसको ना सडनली हमने रियलाइज किया कि उसको टाइप 1 डायबिटीज हो गई है। एक बार मैंने उसका वैसे ही चेक किया शुगर, तो 580 पे पहुंच गई थी। उसी टाइम मेरी डॉटर और सन इन लॉ उनको भगा के लेके गए और पहले एक हॉस्पिटल में गए। उन्होंने हॉस्पिटल वालों से जवाब दे दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, आप इसको सफदरजंग ले जाओ। फिर मैंने कहा नहीं, अभी रात को 2 बजे कहाँ ले जाओगे, तो उसको आप आर्टेमिस हॉस्पिटल में ले जाओ। वहां गए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा था बहुत ज्यादा, वहां 620 उसकी वो आई डायबिटीज। तो पता लगा बाद में कि ये टाइप 1 डायबिटीज है। थोड़ी देर पहले ये पता लगा कि उसको वो ग्लूटेन प्रोन है। अगर उसको ग्लूटेन वाली कोई चीज खिलाई तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मतलब उसकी किडनी इंटेस्टाइन सारी खत्म हो जाएंगी। फिर हमने लोगों को बोला यार हमारी कुछ मदद करो क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा होगा इसमें। तो लोगों ने मदद भी करी। हमने ये सोचा है कि इस लड़की को हम जब तक हमारे हमारे में जान है, जब तक हम में जान है, उसकी हम मदद करेंगे और पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने, सम ऑफ देम हैव पेड इवन 25,000 फॉर हर। अपना प्लान क्या है, मेरा प्लान भी है कुछ थोड़ा सा। जी वो सर, ये वो है तो कि बहुत जरूरी है जानना कि आप इतनी खूबसूरत जर्नी के बाद अब आगे क्या करना चाहोगे। इसके साथ ही विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप किस तरह से सोचते हैं कि महिलाओं को और आगे और सशक्त बनाया जा सकता है। तो ये दो बातें हैं। 25 साल और पड़े हैं। तो अच्छा, बाकी जो आपने एक क्वेश्चन पूछा है औरतों के लिए विमेन एम्पावरमेंट, तो इसके बारे में मेरा एक बहुत सिंपल सा आंसर है। चाणक्य ने लिखा था, उसकी किताब में लिखा हुआ है कि विमेन आर सुपीरियर स्पीसीज एज कंपेयर टू मैन and in all respects. For example, in physical strength, equally in emotional strength, mental health, perseverance, tolerance, adaptability. Also in गंदी बात ये लिखी कि also they are good in treachery and cleverness. तो ये सब सोच के अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे जैसे मैं सोच रहा हूँ, और जब सब आदमी औरतों को इस तरह से देखेंगे तो अपने आप ही वो रिस्पेक्ट करेंगे और अपने आप ही वो एम्पावर हो जाएंगे। होता क्या है कि पॉलिटिक्स में लोग लिप टॉक करते हैं कि विमेन को इतनी सीटें मिल जाएंगी, विमेन ये हो गया वो, लेकिन होता फाइनली कुछ नहीं होता। तो जो जो करना है वो ऑन द ग्राउंड होना चाहिए, बिल्कुल ऑन द ग्राउंड। और आगे एक टाइम भी हो रहा है आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनना है हमने, तो आई होप यू आर रेडी विद दैट। अपना इंस्ट्रूमेंट साथ है आपके। दर्शकों से मैं एक बार फिर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। आप जुड़े रहिए विमेन टीवी इंडिया के साथ, प्रोग्राम देखते रहिए। आप देख रहे हैं कि कितने रुचिकर व्यक्तित्व हैं जो हमारे बीच आ रहे हैं। इनसे जो आप बात कर रहे हैं आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत सी मोटिवेशन भी मिलती है। मैंने जो पहले 2 लाइनें पढ़ी थी, मैंने बोली थी, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी तक जारी है। और अभी 75 की एज में जो सफर खुद कहना है उनका 100 साल तो चलेगा। अगर यही भावना लेके हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि ओल्ड एज प्रॉब्लम्स किसी को आ सकती हैं। जब हमारी भावना अच्छी होती है, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बीमारियों से भी लड़ सकते हैं और किसी चीज़ को हम आगे ले जा सकते हैं जो भी हम शुरू करते हैं। तो हम इनकी पुस्तकें पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उनके बारे में बात करते रहेंगे, प्रोग्राम्स भी देखते रहेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी माइक राणा जी से कि अनम्यूट करें और अकॉर्डियन पे कुछ सुनाएं। ये दिख नहीं रहा। थैंक यू। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो आई होप आप इसी तरह से हमेशा बजाते रहें, संगीत में रहें, संगीत के सुरों के साथ जीवन का पूरा आनंद लें। तो अदर से कुछ मैडम कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, वो कैमरे की अगर गड़बड़ है तो वो मेरा कसूर हो गया। मुझे नहीं पता, मैं पीछे खड़ी हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चला कि वो दिख रहे थे। नहीं दिख रहे हैं। फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। सर, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और साथ ही आप संदेश क्या देना चाहते हैं समाज को? जिस तरह से आप जी रहे हैं, हमारा इंटरव्यू का भी एक ये मकसद होता है कि लोग जानें कि सब लोग एक एज के बाद खुद को छोड़ के नहीं बैठे हुए, ये मान के। ये एक सुनीति वर्मा जी का एक कमेंट है यहाँ पे, मैग्निफिसेंट एयरफोर्स ऑफिसर, एक्सीलेंट म्यूजिशियन, लाइवली ह्यूमन जीनियस, राइटर, known him since 1971 Indo-Pakistan war, who better than Mike? सर, बहुत से दर्शक बहुत इंस्पायर हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं आपकी बातचीत सुन के। तो इसके साथ ही अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और समाज को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो क्योंकि आजकल मैं किताबें लिख रहा हूं, तो मैं किताबों पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। और आप विश्वास कीजिए, देयर आर अबाउट 5 बुक्स विच आर ऑलरेडी इन द ड्राफ्ट स्टेज। और वो सब अब मैं, क्योंकि मैं नॉन फिक्शन, क्रिएटिव नॉन फिक्शन यूज करता हूँ, तो उनमें सब में प्लॉट बनेंगे, सबके कैरेक्टर आएंगे। तो दुनिया में जिन जिन लोगों को मैं मिला हूँ, सब लोगों का बारी बारी सबका नाम इन बुक्स में होगा। तो ऐसे ही मैं कम से कम दो किताबें तो ऐसी मैं जल्दी ही लिखूंगा। तो फोटोग्राफी जितनी मैंने ये आपको जो वीडियो भेजी है, उसमें जितनी भी फोटोग्राफ आपने देखी, जितनी भी, ऑल ऑफ देम हैव बीन क्लिक्ड बाय मी इन डिफरेंट प्लेसेस। तो इसके हिसाब से एक मेरे को एडवाइस किसी ने किया था कि आई शुड मेक ए कॉफी टेबल बुक, जो जिसमें ऑल द प्लेसेस दैट आई हैव विजिटेड, उनका एक एक या दो पन्नों में हर एक जगह का डिस्क्रिप्शन हो थोड़ा सा, और अच्छी 2-3 फोटोज हो अच्छी वाली। तो ये किताब मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस किताब में एक और चीज है कि इसके 2 वर्जन बनाऊंगा। एक तो टेबल पे जो रखी जाएगी, और एक ऐसी होगी जो जेब में रखी जाएगी। अब ये सब करते करते मेरे को ये भी लगा कि ये जो म्यूजिक पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये हम बाहर जाके स्टूडियो में क्यों करते हैं। तो मैंने रिसेंटली आई स्पेंड अबाउट more than a lakh on buying equipment by which I can do professional recording. अब मैं घर में ही बैठ के गाने रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लोगों को गवा सकता हूँ, और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ये मैं अपने घर में ही कर लिया है। तो ये 75 ईयर्स की उम्र में जाके आदमी एक नया काम शुरू किया है। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि या तो ये दिमाग खराब हो गया इसका, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया इसको, तो ये कुछ कर रहा है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब हम स्टूडियो में जाते हैं, तो जो वो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें साउंड का प्रॉब्लम होता है, एंगल का प्रॉब्लम होता है। जो अगर मैं खुद करूंगा,
तो कम से कम ये चीजें मैं संभाल सकता हूँ। अभी तक मैंने आपको शायद नहीं बताया कि मैं रशियन और हिब्रू दोनों लैंग्वेज बोल सकता हूँ। या गवारू पारूस्की तो मतलब ये रशियन में मैं बोला हूँ कि मैं तो अच्छी तरह से आती है, और मेरा जो एक्सेंट है रशियन बोलने का ये बिल्कुल रशियन जैसा ही है, क्योंकि मैं रशिया में बहुत टाइम रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो दो लैंग्वेजेस हैं इनको भी ज्यादा पॉलिश किया जाए, तो हो सकता है मैं कोई बुक रशियन में भी लिख दूं, कोई रशियन की किताब भी लिख दूं। लेकिन जो रिलीजन है जिसमें सारी दुनिया मस्त, आजकल मस्त देखो, अभी कई हमारे देश में मेरे ख्याल है 12 महीनों में से 12 फेस्टिवल तो जरूर होते हैं, 12 से ज्यादा ही होते हैं। 12 फेस्टिवल होते हैं, उसमें सब में एक दिन या 2 दिन की छुट्टी होती है। तो अगर हमारा इतना ही टाइम वेस्ट होता रहेगा इन चीजों में, तो हम काम क्या करेंगे, काम कब करेंगे? सैटरडे संडे वैसे निकल गया, जो छुट्टियां आ गई वो निकल गई, तो हमारे पास जो वर्किंग आवर्स है तो बहुत कम है। तो ये मैं ये सब कहना चाहता हूँ लोगों को कि भाई अगर हो सके तो कम से कम ये छुट्टियां मत लिया करो, या अगर छुट्टी ये लेते हो तो उसमें कोई क्रिएटिव काम किया करो। बहुत खूबसूरत जर्नी रही है आपकी, और हमारी दुआ है कि आगे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत रहे। आपका एयरफोर्स का जो पीरियड था वो भी बहुत सुंदर रहा, उसके बाद कॉरपोरेट जीवन में बहुत सुंदर रहा, बेटियां बहुत अच्छे से आगे निकली हैं, मैडम आपकी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा रहा। और आगे जो आपके प्लान्स हैं, हम प्रेयर करते हैं भगवान से कि वो जो भी आप सोचते हैं वो सब हो, आप कर पाएँ बहुत अच्छे से। और इसके साथ आगे भी और 5, 7, 10 साल के बाद जब सब नए प्लान्स बनाएं उस वक्त की दुनिया के साथ। और अंत में एक क्वेश्चन के साथ हम ये अपनी जो टॉक है इसको एंड करेंगे कि 2030 में 9 साल बाद आप कैसी दुनिया देखते हैं, आपके विचार से? देखिए जी, हमारी दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें 2-3 चीजें। एक तो पॉलिटिशियन जो है ये सब लोग, इनका एक ही एम है, किल योर सर्वाइवर, किल द अपोनेंट। जो आपका अपोनेंट है उसको किल करो किसी भी तरीके से। सद्दाम हुसैन ले लो, किसी को ले लो, वो दूसरे बंदे को मार देते हैं। तो हमारी जो जो आगे की लाइफ आने वाली है उसमें हमारा सोशल मीडिया का काम बहुत ज्यादा, क्योंकि पेड पेड चल रही है सारी न्यूज वगैरह, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो सोशल मीडिया शुड बी वर्किंग वेरी वेल। तो सोशल मीडिया के हिसाब से मैं देखता हूँ कि 2030 तक ये हो जाएगा कि सोशल मीडिया पे ही काम चलेगा, ये न्यूज़पेपर वगैरह ये सब। तो अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारी लाइफ में से कम्युनिकेशन कहाँ से? सोशल मीडिया पे ही है। जैसे अब मैं और आप बात कर रहे हैं, कई लोगों ने हमें सुना होगा, अगर मैं ये बात ना कर रहा होता तो ये कैसे पता लगता लोगों को? तो ये सोशल मीडिया पे ही काम चलेगा। और 2030 में, और अगर होपफुली मोदी जी आ गए तो ये और भी आगे जाए सोशल मीडिया। जी सर, बहुत सुंदर बातचीत रही आपके साथ। सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खूबसूरत बातचीत को आपकी जो प्रेजेंस है वो और भी खूबसूरत बना देती है। जिस तरह से आपने कमेंट्स दिए, रिस्पांस दिया, उससे बहुत अच्छा लगा। और आप जुड़े रहिए विमेन टीवी इंडिया के साथ। जैसा कि अभी सर ने भी कहा कि इन चैनल्स का फ्यूचर बहुत बड़ा होने जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए विमेन टीवी इंडिया के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, के प्रोग्राम्स देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट्स देते हैं हम वो पढ़ते हैं, और उसमें आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। हम यहाँ आपके पास कई बार एक टेलीफोन नंबर भी ब्लिंक करते हैं, तो उस पे आप बात कर सकते हैं। हमारे विभिन्न प्रोग्राम्स में वो टेलीफोन नंबर आता रहता है। तो आप जो भी आपका मैसेज है हमारे लिए, जो आप हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं, देखना चाहते हैं, वो ज़रूर बताएं। और यहीं हम समाप्त करते हैं अपनी इस बातचीत को। माइक राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में से समय निकाल के हमारे दर्शकों के साथ बातचीत की और इतना खूबसूरती के साथ इसको बयान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।